कंपाउंड एंगल्स के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल्स। पॉइंट है ये। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ डिफरेंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस। उसमें से पहला फॉर्मूला है साइन ऑफ cos a minus b equals to cos a minus b equals to cos a cos b plus sin a sin b। अगर दो एंगल का डिफरेंस है उसका कॉस रेशियो फाइंड आउट करना चाहते हैं तो cos a minus b होगा cos a cos b plus sin a sin b। नंबर 2 cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b। एक cos a minus b है that is cos a cos b plus sin a sin b। लेफ्ट साइड में नेगेटिव साइन है तो राइट साइड में पॉजिटिव साइन। and cos a plus b equals to cos a cos b minus sin a sin। लेफ्ट साइड में पॉजिटिव साइन होता है तो राइट साइड में नेगेटिव साइन होता है। नंबर 3 sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b। sin a plus b का फॉर्मूला होता है sin a cos b plus cos a sin b। नंबर 4 है sin a minus b that is sin a cos b minus cos a sin b। These are the four important formulae. Cos a minus b is cos a cos b plus sin a sin b। Cos a plus b is cos a cos b minus sin a sin b। Sin a plus b is sin a cos b plus cos a sin b। Sin a minus b is sin a cos b minus cos a sin b। अब इसमें नेक्स्ट है tan a plus b। tan a plus b होता है tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b। नेक्स्ट है tan of a minus b tan a minus tan b
And formula is cos A minus B है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव साइन है तो राइट साइड में पॉजिटिव साइन, cos A minus B का cos A cos B प्लस sin A, यहाँ पे प्लस है तो राइट साइड में नेगेटिव होता है, cos A प्लस B है तो राइट साइड में आएगा cos A cos B माइनस sin A, लेफ्ट साइड में sin A प्लस B है तो राइट साइड में मिक्स है sin cos cos sin, sin A माइनस B है तो sin इधर माइनस, sin में माइनस है तो माइनस ही साइन आता है, लेकिन sin A cos B माइनस cos A sin B होता है। उसी तरह से tan A प्लस B का एक्सपांशन होता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A into tan B। tan A माइनस B का एक्सपांशन होता है tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A into tan B। These are the important formulas, that is the sum and difference, trigonometric functions of sum and difference। तो स्टूडेंट्स ओके, ये आपके सामने फॉर्मूले है, trigonometric ratios of sum and difference, sin A plus B cos A minus B cos A plus B sin A plus B sin A minus B tan A plus B tan A minus B। इसका यूज करके हमें कुछ एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं हम। sin pi by 2 minus theta, sin pi by 2 minus theta इस फॉर्मूले में अगर आपने a pi by 2 रखा और b थीटा रखा, we know that इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने जो आपको अलाइड एंगल के फॉर्मूले बताए थे उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। we know that sin A minus B equals to ये sin A minus B फोर्थ नंबर का फॉर्मूला आपके पास, sin A minus B sin A cos B minus cos A sin B, put A is pi by 2 and B is theta। A की वैल्यू pi by 2 रखेंगे, B की वैल्यू थीटा रखेंगे, तो लेफ्ट साइड आएगा sin pi by 2 minus थीटा, राइट साइड आएगा sin pi by 2 cos थीटा minus cos pi by 2 sin थीटा। sin pi by 2 90 डिग्री वैल्यू 1 cos थीटा minus cos 90 डिग्री वैल्यू 0 into sin थीटा। 1 into cos theta is cos theta and 0 into sin theta is sin theta, 0। Therefore sin pi by 2 minus theta is cos theta, sin pi by 2 minus theta is cos theta। Now what are the applications of these formulas? इस समय डिफरेंस के जो फॉर्मूले हम डिस्कस कर रहे हैं उसका यूज क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है? डियर स्टूडेंट, अभी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम।
Without using trigonometric tables, find without using trigonometric tables, find number 1 sin cos 75 degree. Yes, is there any doubt? लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो sin पाई बाय 2 माइनस थीटा का आंसर होता है cos थीटा. sin पाई बाय 2 माइनस थीटा इज cos थीटा. यस प्रतीक. नाउ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल का यूज कर विदाउट यूजिंग द रेशियोज सम और डिफरेंस का यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. cos 75 degree can be written as cos of 30 plus 45 because cos 30 की भी वैल्यू मालूम. Okay, see the last question. Sin pi by 2 minus theta. अगर कुछ आपको डाउट है तो आप ऑडिबल होके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रतीक. श्रेयस. Okay, got it. Clear? Okay. cos 75 को क्या लिखेंगे? 30 plus 45. So we know that the formula for cos A plus B. cos A plus B का फॉर्मूला आपके पास है cos A cos B माइनस sin A sin B. ये फॉर्मूला है cos A plus B का. cos A plus B cos A cos B minus sin A sin B. Put A is equal to 30 degree, B is equal to 45 degree. अगर A को आप 30 और B को 45 रखेंगे तो क्या आएगा? देखो cos 30 plus 45 equals to cos 30 cos 45 minus sin 30 sin 45. cos 30 plus 45 is cos 30 cos 45 minus sin 30 sin 45. cos 30 is root 3 by 2. cos 45 की वैल्यू 1 by root 2 होती है. माइनस sin 30 की वैल्यू 1 by 2 और sin 45 की 1 by root 2. इसमें वैल्यू पुट की हम. That is root 3 upon 2 root 2 minus 1 upon 2 root 2. तो फाइनल आंसर आएगा root 3 minus 1 upon 2 root 2. तो cos 75 डिग्री की वैल्यू होती है root 3 minus 1 upon 2 root 2. और ये हमने सम एंड डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करके निकाला है. cos 75 की वैल्यू जो आई है आपकी root 3 minus 1 upon 2 root 2. cos 75 की वैल्यू है स्टूडेंट root 3 minus 1 upon 2 root 2. This is the use of the formulas of last page, that is trigonometric ratios of compound angles
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस। इससे आप tan 75 की वैल्यू निकाल सकते हैं, sin 15 डिग्री निकाल सकते हैं, cos 15 डिग्री निकाल सकते हैं, sin 105 डिग्री निकाल सकते हैं, tan 105 डिग्री निकाल सकते हैं, cos 105 डिग्री निकाल सकते हैं। Next, find the value of tan 75 degree. तो स्टूडेंट्स हमें tan 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। tan 75 डिग्री ओके 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 तो स्टूडेंट्स tan 75 can be written as tan 30 plus 45। tan a plus b का फॉर्मूला है आपके सामने, ये tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b। tan a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b। ये जो एंगल है जो हम अभी निकाल रहे हैं वो that can be represented by the sum and difference of standard angles। अगर आप 310 एंगल जो है, अगर कोई भी एंगल को हम सम एंड डिफरेंस स्टैंडर्ड एंगल्स के सम एंड डिफरेंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इस मेथड से निकाल सकते हैं। और भी कुछ दूसरे मेथड्स हैं उसमें हम और एंगल के निकाल सकते हैं, जैसे कि 25 डिग्री। 25 डिग्री को हम इस मेथड से नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड एंगल
तो स्टूडेंट्स ये जो 25 डिग्री है, 50 डिग्री है, इसका फॉर्मूला हम सम एंड डिफरेंस का यूज करके नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये जो 25 डिग्री 50 डिग्री दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। सम एंड हमारे स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से हैं? 30 डिग्री, 45, 60, 90, 180, 270, 360 और 120, 150। इन दोनों का एंगल का यूज 150 कैसे मिला? 60 प्लस 30 मिला 135, 90 प्लस 45। ये जो स्टार वाले हैं, इनके सम और डिफरेंस का यूज करके हम निकाल सकते हैं। बट 25 जो है, 50 है, 310 है, तो इनके सम और डिफरेंस में नहीं आते हैं। तो समझ रहे हैं बात? इसका भी निकाल सकते हैं हम, 25 का निकाल सकते हैं, 50 का निकाल सकते हैं, 310। देयर इज अनदर मेथड। ये हम एग्जांपल क्यों देख रहे हैं? इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन मालूम होना चाहिए, इसलिए देख रहे हैं। एक्चुअली इस फॉर्मूले का व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला व्हेन वी यूज दिस वन टू डिस्कस दैट पॉइंट, वी हैव टू डिस्कस दिस एग्जांपल। tan 75 का जानते हैं, tan 30 plus 45, that is tan 30 plus tan 45 upon 1 minus tan 30 into tan 45. 1 plus 1 by root 3 upon tan 30 is 1 by root 3. Tan 45 is 1 upon 1 minus 1 by root 3 into 1. That is, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेंगे, root 3 plus 1 upon root 3 minus 1. और root 3 डिवीजन का कैंसिल हो जाता है। तो tan 75 की फाइनल वैल्यू आती है √3 plus 1 upon √3 minus 1. नेक्स्ट है sin 15 डिग्री। तो इसके लिए कुछ समय चाहिए आपको लिखने के लिए, तो समय दे देता मैं। स्टूडेंट्स वांट सम टाइम टू रीराइट द आंसर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, sin 15 डिग्री। Sir, can you please get your camera close to the notebook? Yes. Thank you, sir. √3 plus 1 upon √3 minus 1. Because the denominator of numerator is √3 and denominator is √3. Okay, 1 plus ये जो है addition of number is commutative. 1 plus √3 is okay. नहीं सर, वो फॉर्मूला में लिख कर दिया है 1 प्लस। न्यूमरेटर में अगर 1 plus √3 चलेगा, मैंने यस √3 tan 30 की वैल्यू 1 by √3 है,
और tan 45 की 1 है, तो tan 30 की वैल्यू जो है, फाइनल आंसर दिस वन। मैंने क्या किया, tan 45 पहले लिखा, tan 30 बाद में लिखा। एंगल एडिशन में लिख सकते आप, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं लिख सकते। न्यूमरेटर को √3 + 1 और 1 + √3 दोनों भी चलेगा। दिस इज करेक्ट आंसर, और ये भी करेक्ट है, दोनों भी करेक्ट है, क्योंकि एडिशन में √3 + 1 लिखा तो भी चलेगा और 1 + √3 लिखा तो भी चलेगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में √3 - 1 ही लिखना पड़ता है। एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन इज कम्यूटेटिव। थ्री + 5 = 5 + 3, but in case of subtraction it is not correct. 3 - 5 is not equals to 5 - 3. 3 - 5 is not equal to 5 - 3, but 3 + 5 is equal to 5 + 3. It is correct. Okay, next देखते हैं, नेक्स्ट इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 15 degree. Now try to find out the value of sin 15 degree. Sin 15 degree can be written as sin 45 - 30. 45 - 30 is 15. Sin 15 degree can be written as sin 45 - 30. तो इसका कौन सा फॉर्मूला यूज होगा स्टूडेंट? sin A - B वाला। sin A - B sin A cos B minus cos A sin B। तो स्टूडेंट sin 45 - 30 equals to sin 45 cos 30 minus cos 45 sin 30. Sin 45 cos 30 minus cos 45 sin 30. That is equals to sin 45 is again 1/√2 cos 30 is √3/2 minus cos 45 1/√2 और sin 30 1/2. That is √3/2√2 minus 1/2√2. That is √3 minus 1/2√2. जो वैल्यू cos 75 की है वही वैल्यू sin 15 डिग्री की होती है। जो वैल्यू, यस करेक्ट वेदांत,
This is about the value of cos 75. Root 3 minus 1 upon 2 root 2.